Hello, I'm Diksha. I'm a doctor recently cleared FMG in my first attempt with 184 marks, and these days my main gig is I'm helping other FMG aspirants to clear their exam through my guidance sessions and my flashcards. I'm also a creator on Instagram. You can check out my socials from description. And on the other side, I'm making YouTube videos on this channel since 2024. Anyway, let's dive into Dr. Achal's story. Hello everyone. Joining us today is Dr. Achal Sharma. Many of you already know her through her Instagram, MedMade Easy, with 70k followers. For me, she's a true FMG warrior who overcome multiple attempts and is here to share her story, struggle, and the strategy that finally led her to this success. Welcome, Dr. Achal. Delighted to have you here. Thank you so much, Diksha. It is amazing. And thank you so much for this opportunity. I was waiting for something like this so that, I get a platform where I can like share my struggles and how I did everything. So thank you. So, firstly, I want to know what was your FMG journey, like how many attempts you have given, and what changes that you have done so that you cleared the exam this time. Okay, so first, uh, the journey is actually very long, but हम थोड़ा short में बात करेंगे, otherwise Yeah. video will be very long. So I came back to Ukraine in 2022 and फिर उसके बाद I started preparing not very well to be very honest. अगर मैं first में ही I wish मैं अच्छे से कर लेती but मैंने वो नहीं करा उसकी वजह से I reached here but anyway it's okay. तो फिर in total I gave 4 attempts and my consecutive marks were like 142, 145, एक बार 149 and 147. So in Jan 2024 149 थे और अभी last वाले में it was जो जुलाई वाला था 2024 उसमें 145 थे and so finally I passed in this attempt with 168 marks which is not a great score but it's okay I have passed so वो सब struggles वो सब चीजें उनसे मैं आगे आ चुकी हूँ तो I'm just glad so yeah. Okay. So, I want to ask what was the hardest part of facing failure in FMG? Like you have faced it, so you can share it better than anyone else. So hardest part was पहली बात तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ स्टूडेंट मतलब मैं कभी लाइफ में फेल नहीं हुई हूँ एंड मैं अबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ सिंस मैं स्कूल एज वेल सो एक तो अपने आप की एक्सेप्टेंस सबसे डिफिकल्ट होती है इवन लाइक माई पेरेंट्स एंड ऑल दे वर लाइक ओके ऑब्वियसली सारे आके आपको uh, वो करते हैं कि इट्स फाइन यू कैन डू इट डोंट गिव अप ब्ला 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 बट आई वाज लाइक आई अंडरस्टैंड आई कैन बट आई कांट एक्सेप्ट दैट फेलियर सो फर्स्ट थिंग जो मैंने करी है जिसको मैंने ओवरकम करा दैट वाज ओवरकमिंग माई फियर लाइक वो जो मेरे अंदर एक चीज थी ना लाइक माई सेल्फ एस्टीम वॉज वेरी लाइक इट केम लो माई कॉन्फिडेंस एवरीथिंग सो इट्स ओके वो सेटबैक लगना जरूरी था अब पता चल गया क्यों उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब मैं क्या करूंगी बट या दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट मतलब वो एक्सेप्ट करना माई फेलियर दैट वाज डिफिकल्ट प्लस उस चीज को मेंटेन करना लाइक द थिंग ऑफ नॉट गिविंग अप इन एवरी पर्टिकुलर अटेम्प्ट उस चीज को मेंटेन करना वाज वेरी डिफिकल्ट बट हियर वी आर लाइक कर लिया हमने जैसे भी सो या Yeah, I was about to ask the same thing that how you kept going. Like एक बार हो जाता है फिर there is a thing कि हम कहते हैं maybe I'm not capable of it. Even I have shared it या on my Instagram that one of like boy have sent me the message that मेरे पापा कह रहे हैं कि तू नीट यूजी नहीं निकाल पाया अभी एफएमजी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया तो these kind of pressure is built up whether it is peer pressure or parents so what make you kept going in this journey?
पहले वही लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग माई फेलियर, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद था उसी सेम चीज को, उसी सेम कंटेंट को दोबारा पढ़ना, विच इज वेरी डिफिकल्ट। प्लस पूरे आने वाले 5 मंथ्स में वो मोटिवेशन ऑन रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आई यू कांट स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सो मेरे दिमाग में हमेशा जब भी मैं क्विट करने का सोचती थी, आई ऑलवेज थॉट लाइक आई हैव गिवन माई 6 years टू दिस करियर, ओके। लाइक मैं मिड स्कूल में थी, इतना टाइम लगा है, तो हाउ कैन आई गिव अप नाउ। मतलब अब वो चीज हमेशा मुझे रोक लेती थी कि नहीं, तुझे डॉक्टर बनना है, एंड दिस वॉज योर ड्रीम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्लस यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट ऑल्सो। और थोड़ी सी अब और मेहनत करके एंड ऑल्सो स्मार्ट वर्क करके, strategizing properly, I guess you can. So वो ऐसे करते करते आई डोंट नो इतने अटेम्प्ट्स कब हो गए, और कुछ बीच में मैं काफी ज्यादा लो भी हो गई थी। मतलब लाइक आई नेवर शेयर्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई वाज लाइक ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ डिप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली, बट या आई वुड Yeah. से काइंड ऑफ, आई मीन आई वाज फीलिंग वेरी लो, ऑब्वियसली, बिकॉज आई थॉट कि अब लाइफ इज पर्पसलेस एंड ये सब चीजें। बट आई एम ग्लैड कि मैंने जैसे तैसे, मेरे फ्रेंड्स, not much friends, 1 2 friends and my family, they supported, and उनका सपोर्ट हमेशा था। काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने काफी कुछ बोला, वो तो होते ही हैं, ठीक है, बोलने वाले लोग, बट स्टिल वो एक जो चीज हमेशा होती है, अगर इस whoever is watching this right now, एंड अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है और आप जुलाई वाला देने वाले हो एंड इट इज नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, the one thing which can keep you going is just your why. Like why do you want to do this? क्यों इतनी मेहनत करके, तुम खुद सोचो, इतनी दूर से आए हो, अब गिव अप करके क्या फायदा होगा? देन थोड़े टाइम में यू कैन बिकम अ डॉक्टर, लाइक 5 6 months में you can, and फिर internship and you will get your license. So I think time doesn't matter, it matters of course sometimes, वो जो होता है ना, एज निकलती जा रही है ये वो, बट Yeah. अगर आप मेडिसिन लाइन में घुसे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब होने ही वाला है। सो लाइक माय ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड ये तो वो, दैट वाज माय व्हाट केप्ट मी गोइंग। Yeah. So, what major changes did you make in your preparation this time that helped you pass, according ओके, to सो मेजरली ये मैंने अपने पेज पे भी शेयर करा है, बट पहले क्या होता था, मैं जीटीज नंबर 1, मैं जीटीज देने से बहुत ज्यादा डरती थी, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट, वो जो मतलब नॉर्मल बच्चे, सभी डरते हैं, उन्हें लगता है कि स्कोर अच्छा नहीं आएगा, या मतलब फिर उससे हम लो फील करते हैं कि यार अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा। बट अबाउट जीटीज आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइक प्रॉपरली इन फ्यू रील्स एज वेल, कि उसको कैसे यूज करना है जीटी को और ये सब। तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने 3 मेजर चेंजेस करे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज लाइक कि 140 से ऊपर मेरा स्कोर नहीं जा रहा है। मतलब मेरा 141, 142 से लेके 149 के बीच में ही था। सो दैट मीन्स आई एम स्टडिंग थिंग्स, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट कुछ ना कुछ वो चीज है विच इज गोइंग रॉन्ग। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जीटीज पे वो फोकस नहीं करा था। आई यूज टू गिव जीटीज, 2 3 जीटीज में देती थी, लेकिन अच्छे से ना उसको एनालाइज करना एंड नोइंग माई मिस्टेक्स, ये वो थोड़ी बहुत कमी थी। एमसीक्यूज आई यूज टू डू, वो मेरी प्रैक्टिस सही थी, प्लस माई रिविजन वॉज ऑल्सो ओके। 3 मेजर थिंग्स, पहले तो मैंने जीटीज दिए हैं, मैंने 4 जीटी ही दिए हैं एक्चुअली। मैंने इस पूरे टाइम में, जो Yeah. जुलाई के बाद का टाइम होता है प्रेपरेशन वाला, लेकिन मैंने उनको अच्छे से रिव्यू करा, और मैंने अपने पैटर्न देखे कि मैं किस किस तरह की गलतियां कर रही हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट वाले में वो पता चले, एंड अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी पता चले कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, मैंने अपनी रिविजन की साइकिल्स को इंक्रीज करा। मुझे ऐसा लगता था कि चलो 2 आर इनफ फॉर समथिंग, बट आई वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग। तो मैंने अपनी रिविजन की साइकिल को बेटर करा है, और पहली बार मैंने अपने नोट्स सेम रखे हैं, मतलब ऑल अलोंग। एक चीज जो मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है, वो मेरे नोट्स हमेशा सेम थे। इवन इफ
some things I didn't understand from a particular teacher, I used to watch the video, but my notes were same. So second thing is that I increased my revision cycles. I did a total of 3 revisions properly of each subject. पहले कभी मतलब पहले वाले अटेम्प्ट में क्या होता था कि लास्ट के टाइम में आके द लास्ट 2 weeks दे वर सो प्रेशराइजिंग एंड इतना स्ट्रेस हो जाता था दैट आई मतलब आई डिडंट वांट टू लीव, बट वो छूट जाते थे सब्जेक्ट याद करना, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर से देख लिया ये वो। सो इसमें मैंने रिवीजन प्रॉपर करी है। एंड द थर्ड थिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने और ज्यादा इंक्रीज करी है। पहले मैंने कस्टम मॉड्यूल्स इतने सारे करे हैं इस बार, पहले इट वाज नॉट दैट। सो या like the major 3 things were custom modules, and custom modules भी ये नहीं एक particular subject के 3-4 subjects को mix करके integrate करके पढ़ना और सॉल्व करना और जीटीज उनको एनालाइज करना एंड रिविजन्स। और एक एक्स्ट्रा चीज जो मैंने करी है दैट इज नीट पीजी के पीवाईक्यूज और आईएनएस सेट के पीवाईक्यूज भी मैंने करे हैं लास्ट 3 years के। उससे मुझे ऐसा लगता है आई थिंक आई got into that integrated gate because थोड़ा conceptual like if तो आपने भी करे होंगे, ठीक है, वो नीट पीजी में वो चीज है। देयर इज लाइक अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इस बार का जो एग्जाम था एफएमजी का इट वाज वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है, मतलब वो आई लाइक्ड द एग्जाम की इतना बुरा नहीं। पहला बहुत गंदा था, पेपर 1 वाज वेरी ट्रॉमेटिक। I was हाँ about मतलब to वो like cry. I was आई on my रिमेम्बर योर vomit. स्टोरी, Yeah, हाँ and I दैट यू was about कॉल्ड, to cry. हाँ And also, even in this paper, there was hand-drawn images in ENT, if you हाँ remember. आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कि हम इस जमाने में भी आप प्रिंटेड चीज नहीं डाल सकते। सो Prince. whatever उनका है, बट सेकंड पेपर आने के बाद मुझे लगा अच्छा ठीक है अब मेरे चांसेस हैं पास होने के। अदरवाइज पेपर 1 को देख के मुझे लग रहा था कि अब तो हम गए। Yeah. And also, you have talked about it on your Instagram. One myth that June का exam easy होता है या फिर हाँ December. Do you think with upcoming exam there is a difference or not? हाँ, अगर मैं 2023 की बात करूं तो डिफरेंस था, मेजर था एक्चुअली, क्योंकि जैन थोड़ा सा टाइमलाइन याद रखना whoever इज Yeah. वाचिंग, ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ। जैन 2023 वाज इजी, ठीक है, लेकिन जून 2023 वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उसके बाद जैन 2024 वाज इजी टू मॉडरेट, बट फिर अगेन जुलाई 2024 मुश्किल हो गया। एंड अभी जो जैन हुआ जैन 2025, सो इट वाज मतलब इजी टू मॉडरेट। सो पिछले 3 एग्जाम से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल जो जुलाई वाले हैं अब जो देंगे वो पहली बात तो वो मुश्किल थोड़ा सा, लाइक मैं ये भी नहीं बोलती ज्यादा डिफरेंस होता है, इट्स लाइक 18-20, नॉट मच डिफरेंस। वो क्यों आता है उसका रीजन विद पैटर्न्स, बिकॉज कुछ लोगों ने फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्लियर्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और जैन वाले में, ठीक है, तो यू वुड नॉट नो व्हाट जुलाई 1 हैज एग्जैक्टली, मतलब पेपर दे के पता चलता है बेटर। तो मैंने जो पैटर्न से नोटिस करा है वो मुझे एक चीज लगती है कि रिसेंटली ना नीट पीजी होता है मेजर, मतलब जब जुलाई 2024 वाला एफएमजी मतलब 2025 वाला एफएमजी होगा तो उससे पहले नीट पीजी होगा। तो आई थिंक टेक्निकली दे काइंड ऑफ आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट दे मेक इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट देन जनवरी 1। ऑल्दो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू स्केयर एनीवन। इट इज अ गुड थिंग दैट यू नो दिस कि थोड़ा सा लेवल ऊपर आता है सो दैट यू बी प्रिपेयर्ड। आई मीन वी आर नॉट किड्स एनी मोर, सो अगर हमें कोई चीज ये बोले कि वो मुश्किल आते है तो उससे डरने की बजाय आपको उसको थैंक करना चाहिए कि शुक्र है आपने ये तो बताया, एटलीस्ट हम बेटर उसके लिए प्रिपेयर्ड तो होंगे। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि वो इतना इजी होता है और वहां जाके वो मुश्किल आ जाए फिर भी आप मुझे ही बोलोगे। सो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली ज्यादा नहीं है।
And at the end of the day, what I feel is whether it is June exam or January exam, you have to study for Hmm. both. The only Yeah. difference will be in the options, because in June what I felt is कि जो options होते हैं वो बहुत close होते हैं, that you have already said एग्जैक्टली कि हाँ, option मतलब close होते. आपको उसके लिए हाँ ऑप्शंस काफी क्लोज होते हैं, ये मुझे Yeah, मेजर वो लगा है। जैन वाले में एमसीक्यूज वर गुड, मतलब ऐसा देख के आपको पता चल रहा था कि क्या आंसर है, एंड एटलीस्ट यू वर एबल टू चूज। to do. सो Yeah. या हम्म And also there is a thing that people say कि अब पेपर हार्ड हो रहा है तो हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, which I हम्म feel like very stupid. Maybe हाँ, I'm wrong, सेम but हियर, सेम हियर, नो because आई ऑल्सो रिलेट टू इट। हाँ। I have not given like I have given this attempt, and हम्म सिर्फ फेशियल नर्व से 4 क्वेश्चन, अराउंड 3 या 4 क्वेश्चन आए थे. सो हम्म फेशियल नर्व इज सच ए इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो अगर आप ये कहो कि आप एक ही जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही छोड़ दोगे, या फिर अगर आप हाँ, सारे के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपके वो 3 क्वेश्चन चले जाएंगे. मे बी यू कैन स्टक बिटवीन लाइक 147. एग्जैक्टली हाँ। So PYTs are, yeah, you can पीवाईटीज add को तो to it. पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड क्यों करा हुआ है, लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई मीन ट्रस्ट मी, अगर आप पीवाईटीज को अच्छे से करो तो यू कैन इजीली गेट ओवर 170 या 200 Yeah, प्लस भी। definitely. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ उन पे फोकस करो, बट जब आपके पास एक मतलब आपके नोट्स होते हैं एंड आप उसकी फर्स्ट रिवीजन करते हो, फर्स्ट रिवीजन हमेशा काफी इन डेप्थ होती है, ऑब्वियसली आपको अच्छे से Yeah, सब कुछ समझना है, बट जैसे ही आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन पे जाते हो, आई थिंक यू ट्राई टू फिल्टर आउट थिंग्स ऑटोमेटिकली। जैसे आपने एमसीक्यूज करे, पीवाईक्यूज करे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, मतलब इस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन, योर माइंडसेट गेट्स टू दैट थिंग। सो पीवाईटी इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और चाहे मतलब जैसा भी एग्जाम आए, आता वहीं से है। yeah, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदलेगी, वो कॉन्सेप्चुअल होगा, बट टॉपिक्स विल रिमेन द सेम। yeah. And also there's lots and lots of FOMOs around that like even I have done this कि Telegram पे एक PDF आया, मैंने वो PDF पढ़ लिया, and we हम्म are more focused on these PDF which are like 10 pages or 20 pages, and not हम्म focusing on notes. So what you have to say about it? डेफिनेटली आई अग्री टू दिस फोमो एंड दिस शुड नॉट बी देयर। ये मैंने अपने फर्स्ट 2 में ऐसे करा है बिकॉज ऐसे लगता था कि ओके ये सर क्या पता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो, क्या पता ये हो, वो चीजें Yeah, ज्यादा हो जाती है। विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड, और मैंने ये कुछ दिन पहले भी बोला था अपने पेज पे, कि नोट्स अपने किसी भी हाल में सेम रखने same चाहिए। thing. यू Yeah, शुड नॉट ऐड स्टफ। मैंने एक ग्रुप भी देखा था, उसमें ना पीपल वर एडिंग अ लॉट ऑफ नोट्स और ऐसे लास्ट मिनट रिविजन्स, कि अगर आपने सी वही उस टाइम डिस्क्लेमर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, उनको लास्ट मोमेंट पे अगर पढ़ने के लिए चाहिए तो दैट्स ओके, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ, अगर आप जुलाई के लिए पढ़ रहे हो और आपने फेब से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आई थिंक आपको फालतू और चीजें नहीं चाहिए, बिकॉज कंटेंट सेम ही रहता है। कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे मैरो, डैम्स, प्रेप लैटर, yeah. कुछ भी है, कंटेंट इज सेम। सो इन पीडीएफ के पीछे तो मत जाओ, एंड अपने नोट्स पे स्टिक करना चाहिए डेफिनेटली, एंड एंड मोमेंट तक तो स्पेशली, मतलब वो जो लास्ट का 1 वीक होता है, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर रिविजन एंड Yeah, and रिवाइजिंग योर ओन yeah, नोट्स। yeah, I have taken one guidance session, and हम्म so one person have said कि आप मुझे अपने 20th नोटबुक की PDF भेज दो. So I was ओ like, गॉड, ये मेरे पास हाँ I can't do that. Even I have या this my like 20 notebook right now, and हाँ I said कि मैं आपको एक एक पेज की अगर PDF भी भेज दूँ, it doesn't matter. कि या बिकॉज वो मैंने बनाया, मुझे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, मुझे लाइक हाइट एंड वो वाली जो क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन, उसमें कंफ्यूजन होती है.
मे बी ये हम्म मेरा कंफ्यूजन है, वो आपका नहीं होगा. सो यू नीड टू मेक एग्जैक्टली इट अकॉर्डिंग टू, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ये जो फोमो है पीडीएफ्स का, कि यहाँ से हाँ पीडीएफ ले लिया, यहाँ से पीडीएफ, एंड विथ अपकमिंग डेज आई डोंट थिंक कि आप किसी भी पीडीएफ से पढ़ के क्लियर कर पाओगे. डेफिनेटली नॉट, नॉट एट ऑल. अगर आपको ऐसा लगता है, अ, इसके लिए आपको बहुत जीनियस होना पड़ेगा. अगर आप 6-7 पीडीएफ पढ़ लो, थोड़े से एमसीक्यूज कर लो और आपका लक अच्छा है तो यू कैन. या बट बिकॉज जो अब नेगेटिव जो मार्किंग. अब एग्जाम, हाँ बट मतलब ऐसे भी ऑनेस्टली मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ एमसीक्यूज करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, एंड दे स्कोर लाइक 151 या 152. मतलब बेयरली दे पास, आई मीन दे पास, बट जो भी है. बट हाँ, अब तो ऐसा नहीं होने वाला, डेफिनेटली नॉट. और अबाउट द पीडीएफ, ये जैसे कुछ कुछ लाइव सेशंस होते थे. लास्ट में एक बार गोविंद सर ने भी बोला था कि अरे तुम्हें पीडीएफ चाहिए क्या, पहले पीडीएफ ही दे दूं, ये वो. पीडीएफ एंड वो कितना इरिटेटिंग भी हो जाता है फॉर द टीचर एज वेल, टीचर्स. कि अरे पहले तुम सुन तो लो, तुम्हें पीडी. अभी मैंने जो एक वेबिनार लिया था, जो या मतलब उन्होंने मेड कनेक्ट ओवरसीज है, उन्होंने होस्ट करा था या वो. तो उसमें मेरे को बाद में लोगों ने बोला आप वो पीडीएफ दे दो. अरे दैट वाज अ प्रेजेंटेशन, दैट वाज फॉर मी प्रेजेंटेशन टू एग्जैक्टली. एक्सप्लेन टू यू. तो वो मैं प्रेजेंटेशन आप लेके उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट जस्ट हैड बुलेट पॉइंट्स. उसी तरह एफएमजी की 20th नोटबुक्स जैसे यू हैव, आई हैव. अच्छा अभी तो मैं ऐसे अपनी पूरी वो पीडीएफ और वो बना के मैं बेचने लग जाऊं, लेकिन उसका पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पहली बात मैंने वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि पीपल अंडरस्टैंड इट. दूसरा, लाइक यू सेड, इट वाज वेरी करेक्ट कि कुछ चीजें तुम्हें मुश्किल लगती हैं तो या मेरे लिए मे बी वो इजी हो, मुझे वो याद करने की ना जरूरत हो, और कुछ चीजें मुझे लगती हैं तो वो तुम्हारे लेना. सो इट वर्क्स लाइक दैट. आई मीन 20th notebook is something which you make and you own. या I हाँ agree. And I'm like so done with explaining this thing in every session, that, and आई I नो. feel like FMGs, now the percentage are increasing, though paper was not हम्म easy. You can't say कि हम्म. जनवरी का पेपर बहुत easy था, हाँ because इजी तो percentage, नहीं था. हाँ, हाँ. परसेंटेज अच्छे इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अब हम्म. बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई, एंड एग्जैक्टली. we द as a senior, गाइडेंस. you हाँ. as a senior guiding juniors, that is हम्म something that we lack. Like I remember मेरे senior ऐसे थे who are more हम्म into not studying, and everyone have this same stigma, 6 month में हो जाना है, क्यों पढ़ना है, enjoy करो. हम्म. So हाँ. that has changed a lot, and I am hoping that in future also या आई percentage ऑल्सो फील increase. दैट. मैंने इवन अपने गाइडेंस सेशंस में भी मैंने भी ये बात उनको भी कही है कि मुझे जो चीज लैकिंग थी, दिस दैट वाज दिस. लाइक Yes. आई वांटेड समवन टू हैव अ वन ऑन वन सेशन विद मी, और वो मुझे बताएं कि हाँ ये गलतियां मुझसे हुई थी, एंड तब मुझे स्ट्रैटेजी पता चले. उस टाइम पे तो एटलीस्ट चलो आप यू डिड इट इन 2025, अब तक तो Yeah. एप्स भी इतनी आ चुकी हैं, हाँ. डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, एक तो इतना कुछ देयर इज इन द मार्केट, ठीक है. That is also a प्लस गाइड, distraction. हाँ वो तो है डेफिनेटली. बट गाइड्स हैं एज यू सेड. तो मुझे उस टाइम पे यही लगता था कि मतलब अभी मुझे ये लगता है कि मेरे टाइम पे अगर कोई गाइड करने के लिए या कुछ होता कि क्या लेना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, ये वो, तो आई थिंक वी नीड मोर पीपल लाइक दैट. Yeah. और अब वैसे भी विद इंक्रीजिंग ये जो पैटर्न है ऑफ द एग्जाम, लिटिल बिट डिफिकल्टी, लोग बच्चे Difficulty. ना खुद भी अवेयर हो चुके हैं, Aware हो मतलब उन जाना. वो डर गए हैं कि अरे यार लोगों का मतलब इतने इतने अटेम्प्ट्स में निकल रहा है, तो फिर एवरीवन इज डिटर्मिन्ड कि नहीं हमें पहले में करना है. मतलब लाइक एटलीस्ट 50% ऑफ देम, बाकी सबका नहीं मैं Yeah. कहती. और जो लोग ये सुन रहे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं है, सुन लो ठीक है. मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी अपने उसमें, लेकिन मैं भी फेल हो गई. तो अगर मैं इतने अच्छे पढ़ने के बाद भी इफ आई फेल्ड, तो इसका मतलब द स्ट्रैटेजी वाज रॉन्ग. तो एटलीस्ट अपनी स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी सही रखो, टेक गाइडेंस फॉर फ्रॉम पीपल, और आपके मेंटोर्स जो हैं जिससे भी आपको सही लगता है, एंड पास इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट.
Yeah. So मस्ती करना इज ओके, लाइक अभी यू मेंशन ना कि लोग हाँ, मस्ती में रह जाते हैं, इट्स ओके, बट अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना you बहुत need to जरूरी है. balance it. या डेफिनेटली. Yeah. So what would you say to someone who has failed multiple times and is losing hope? Like what they need to do to make themselves like mentally strong? सी फर्स्टली मैंने भी ट्रायल एंड एरर से ये सब चीजें करी हैं, ठीक है. पर जो चीजें मेरे लिए डेफिनेटली वर्क करी हैं वही एक एक्सपीरियंस तभी तुम्हें ऐसे बंदे का चाहिए होता है, ठीक है. तो नंबर वन तो मैंने जैसे अब पहले यही बोला कि द वाई एम आई डूइंग दिस, आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ कि ठीक है कुछ और देख लेती हूँ, बट मैं कुछ और सोचती थी. तो I was not able to accept the fact that I am stepping out of medicine. Like, क्या मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा ये वो. तो it kind of scared me. So that fear of not being someone जो आपने सोचा था, एक तो वो आपको पुश करता रहेगा, ठीक है, कि तुझे करना ही है. प्लस कुछ लोगों के घर में, मेरे थैंकफुली माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, बट कुछ लोगों के घर में ये चीज होती है कि पेरेंट्स भी बोलने लग जाते हैं कि Yeah. यू नो मतलब ऐसे तो है नहीं, बच्चे अब हमारी भी एज हो रही है, एंड स्पेशली गर्ल्स की, और फिर लड़कों को मतलब जेंडर वाइज दोनों के लिए अलग चीजें, कि लड़कों के लिए तुम कमा नहीं रहे हो, हाँ, some things like these, and girls के लिए अरे तुम्हारी शादी करनी शादी. है, blah blah blah. Yeah. So whoever is watching this and at a stage जहां पे parents are also saying this, तो पहली बात प्लीज इग्नोर, बिकॉज जब आपका रिजल्ट आएगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ठीक है, चाहे आपको रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, एंड दे विल बी हैप्पी, मतलब एटलीस्ट सम ऑफ देम विल बी हैप्पी, एटलीस्ट योर पेरेंट्स. बाकी हो ना हो, पर आपके माँ बाप आपको बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपको बोल देते हैं नेगेटिवली, बट दे वांट द बेस्ट फॉर यू. एंड तो इफ यू हैव सम वन टू, जैसे कई लोग क्या होते हैं कि नहीं यार मेरे को पेरेंट्स के लिए करना है, तो अपनी टाइप ऑफ मोटिवेशन खुद ढूंढो कि कैसे करना है, ठीक है. सेकंड चीज ये है, जो मैंने पहले भी यही बोली थी, कि अगर इफ यू आर लूजिंग होप, तो बस ये सोच लो कि तुम कितनी दूर से यहाँ तक आए हो, तुम कैसे लड़के अब्रॉड गए थे पढ़ने, एंड कैसे तुमने इतना सब स्ट्रगल करा है, तो आर यू गोइंग टू लाइक गिव अप राइट नाउ? नो, राइट. तो गिव अप नहीं करना है, एंड हार नहीं माननी है टिल यू रीच द गोल. एंड ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, यू हैव टू वर्क फॉर इट. ऐसा नहीं है कि ठीक है ओ मैंने आज कह दिया मैं गिव अप नहीं करूंगी या करूंगा, एंड कल से फिर तुम फिर से रील्स स्क्रॉल कर रहे हो बस, Scroll कर. एंड you're नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, तुम जीटी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और फिर लास्ट में you're लाइक ओ मेरा लक नहीं था. ऐसा कुछ नहीं है. लक ज्यादा से ज्यादा दो तीन बार के लिए, मैं मैक्स 2 बार के लिए मैं कह सकती हूँ. उससे ज्यादा अगर आपकी, इवन मैं खुद के लिए ये बोल रही हूँ कि पहले मुझे लक लगता था या कुछ लगता था, पर मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट थिंक इट्स लक इफ आई एम नॉट एबल टू पास इन द थर्ड अटेम्प्ट इवन. सो इट्स डेफिनेटली योर स्ट्रैटेजी विच इज रॉन्ग, और उसको थोड़ा बेटर करो एंड कीप गोइंग, बिकॉज like if you are excited to become a doctor, try to imagine yourself in those situations, and if it helps, मैं medical dramas देखती थी on Netflix because that motivated me. और people who go through anxiety at this time, जो कि बहुत common होता है, and anxiety not as in मुझे घबराहट हो रही है, it's like a serious problem for some people. Some people even took medicines, मतलब मेरे कुछ friends हैं who went through these. So मेडिटेशन, एंड प्लीज अपनी फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा फोकस रखना. ये नहीं कि ओके एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं देखती रहूंगी, तब तक ना बहुत टाइम हो जाता है. एज यू ऑल्सो मेंशन दैट यू वेंट थ्रू लाइक हेयर फॉल, ये तो मेरे साथ इतना ज्यादा हुआ है. Yeah. हेयर फॉल कह लो, ये मुझे तो लग रहा था एग्जाम तक मैं ना गंजी हो गंजी चूड़ा. गॉड, एग्जैक्टली. लाइक स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल. तो पढ़ो भी, और लेकिन अच्छा खाओ, घर का खाओ. Yeah. बिकॉज मुझे बीच में टाइफाइड हो गया था, एंड उसके बाद आई वाज सो स्ट्रिक्ट, आई वाज लाइक मैंने बाहर का खाना ही छोड़ दिया, मतलब वेरी रेयरली आई यूज टू ईट समथिंग. तो
ईट गुड, बिकॉज सी माइंड सही रहेगा तो ही आप पढ़ाई कर सकते हो, एंड ट्राई टू ईट नट्स। ये भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक चीज जो थोड़ी सी चेंज करी है, माई मदर यूज टू गिव मी नट्स एंड ऑल। पहले तो मैंने बोलती थी नहीं 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 मुझे नहीं खाने, बट इस बार मैंने रिलीजियसली नट्स खाए, तो मुझे लगता है मे बी मेरी मेमोरी थोड़ी शार्प हुई हो, or whatever, but whatever helps for you. Yeah. Even during my preparation, I was making my own food because I हाँ, can't eat in Delhi. I can't, and I have बिल्कुल भी not नहीं, taken any exactly. coaching. I just don't want to study at home because I have joint family, so that's not possible to हाँ, study. So I just go chaotic, हाँ. there, took an apartment, and studied. So even like what Achal D is saying, what I am saying, because we have experienced it. We have been Hmm, through all the anxiety, all these things that you guys are going through right now. We have been through it. exactly. So every day you have to, like he said, that you have to find that purpose. That why? Yeah, For me, it was making my parents proud. और you yeah, can choose that कि भाई हम वो बैच हैं जिन्होंने कोविड, रशिया यूक्रेन सब कुछ वॉर, देखा है. ट्रांसफर, लाइक एवरीथिंग वी हैव बिन थ्रू. तो हाँ, अगर हम yeah, वो चीजें कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक एफएमजी इज अ बिग डील. वी हैव बिन थ्रू हाँ, अ लॉट. वी आर ऑलरेडी वॉरियर. तो अब बस just go for it. हाँ, There's हाँ, no इतना like, क्रेडिट तो हम लोगों को मिलना चाहिए, हम खुद को दे सकते हैं इतना क्रेडिट तो. yeah, definitely. हाँ, Like it is a thing that no one else have been through. We have been through a lot. yeah, So I just want to say, go like do GTs, do the yeah, MCQs, and don't fall for any FOMO. There's no hmm, shortcut. जो भी ये कहता है ये not शॉर्टकट at ले all. लो. There's no अब तो shortcut. बिल्कुल भी नहीं है. पहले आई गेस 2022 तक आई वुड से कि आप एफएमजी सॉल्यूशन करके हो जाएगा ये. अब मैं नहीं बोल सकती. और एक सब्जेक्ट्स वाला, दीक्षा, Yeah. वी डिडंट मेंशन कि कुछ बच्चे बोलते हैं 12 13 कर लें. Yeah. नहीं, सारे सब्जेक्ट करने हैं. Every subject, I'm telling you, even in this exam, ophthalmology, like simple, I'm giving you very simple example कि ऑप्था के क्वेश्चन को कैसे फार्मेसी इंटीग्रेट किया गया था, हम्म, लेटेनोप्रोस्ट के साइड इफेक्ट क्या है. ये सारी जो एग्जैक्टली, छोटी हाँ, छोटी चीजें हैं वो आपको लाइक ऑन द वे अभी नहीं पता चलेंगी. जो मैं बोल रही हूँ आपको लगेगा कि दे आर सेइंग ऐसे ही, बट व्हेन हम्म, यू सी दैट क्वेश्चन देन यू गेट रिमाइंडेड कि या ये चीजें इंटीग्रेटेड बहुत ज्यादा हैं. इवन फॉर मेडिसिन आई हैव डन पैथो, फिजियो, फार्मा एंड माइक्रो. तो हम्म, ये बहुत चीजें हैं. एंड इवन फॉर लाइक फ्यूचर आई विल जस्ट से वन थिंग, stick to one resource, give GT, do the MCQs, and nuts खाओ. हाँ. ये तो है. मैंने एक्चुअली इतने बादाम और अखरोट में खाती थी, बिकॉज आई मीन इट्स वेरी अस्टॉनिशिंग टू सी कि अखरोट एग्जैक्टली तुम्हारे ब्रेन की तरह ब्रेन. लगता है, तो कुछ लाइक नेचर डज प्ले अ रोल. सो मुझे एक्चुअली लगता है कि मुझे चीजें ना पेपर में ज्यादा याद आई हैं, बिकॉज आई गेस मेरी मेमोरी भी थोड़ी शार्प हुई है. बिकॉज स्ट्रेस आपकी मेमोरी पे बहुत असर डालता है. आपको जितना आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, योर कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज, आपका आपकी मेमोरी डेफिनेटली धीरे 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 कम होगी. आपको पता नहीं चलेगा वो, बट वो होती है. तो उसके लिए खाना, अच्छा खाना बहुत जरूरी है. लाइक यू नीड टू फीड योर सेल्फ गुड थिंग्स. और हाँ, नींद भी ऐसा नहीं है कि 2 4 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे सो रहे हो पढ़ने के लिए. आई गेस 6 to 8 hours इज गुड, मतलब. गुड इनफ. या. और उसके बाद तुम्हारे पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए भी, एंड एवरीथिंग. लाइक यू सेड कि यू इवन कुक्ड योर फूड. मतलब मैं तो, जब मैं स्टार्टिंग में नोएडा शिफ्ट हो गई थी, मेरे तो वो फायदा ही नहीं हुआ. आई मीन मेरे लिए तो वो वर्क नहीं करा, बिकॉज मेरे को नहीं, मतलब मुझे वो जगह एक तो पसंद नहीं आई, प्लस मे बी वो 3 टाइम का खाना बनाना मुझे ऐसा लगता था कि ओ गॉड, अब मैं कैसे बनाऊंगी ये वो. प्लस वही बाहर का खाओगे तो बीमार हो जाना, ये वो. तो kudos to you that you did it, but मेरे से वो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं घर वापस Yeah, आ like गई. you have to in everything. Like मैं
कुछ बोल दूं, डॉक्टर आंचल कुछ बोल दें, at the end of the day you need to find whether it's notes, whether it's online or offline coaching, whether it's how to, like, you have to go through all of this. You have to find Yeah, what works for you. You can exactly. take suggestion, you can try it for 1 week whether it is working for you or not. हम्म Yeah. वो क्योंकि आई गेस खुद ही चीज, जैसे अब 28 नोटबुक की भी बात हमने करी ना, तो वो भी अ, खुद ही तुम कर सकते हो। उसके लिए डू नॉट रन बिहाइंड पीपल, ट्राई टू गैदर योर कंटेंट एंड खुद बनाओगे तो अपनी हैंड राइटिंग में ज्यादा बेटर याद रहता है। Yeah, 120 notebook हम भी, like we can do that. PDF हाँ बनाने में कितना टाइम लगेगा, but एग्जैक्टली। yeah. And also, what's your future plan now? फ्यूचर प्लान फिलहाल तो मुझे कल किसी ने बोला दैट आई एम वेरी जेलस, ही इज अ फॉलोअर ओनली एंड ही सेड कि ओके मैं ना जुलाई वाला दे रहा हूँ और आप तो अपनी वेकेशन एंजॉय करो इंटर्नशिप तक। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है इंटर्नशिप तक, लेकिन अभी सी नीट पीजी तो देना ही है, वो तो इट्स मैंडेट, Yeah. हो ना हो वो आगे की बात है, बट डेफिनेटली नीट पीजी। बाकी इसके अलावा आई हैव नॉट थॉट मच, अभी मैं उस पे स्टिक कर रही हूँ। तो मैंने अभी करंटली नॉट प्रॉपरली बट आई हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड स्टडिंग मेडिसिन और सर्जरी, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होना शुरू हो जाए। बिकॉज Yeah. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मेडिसिन करी थी रैपिड रिविजन से, पर मैंने वो प्रॉपर जो 240 वीडियोस और इतनी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैंने वो थोड़ी सी हिम्मत करके अब स्टार्टेड कि मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूं। That's all. Okay. So Hmm. with this, we are ending, and you have to say something like closing statement or something. नो बस मैंने वैसे काफी चीजें बोल दी हैं। नट्स खाओ, नोट सेम रखो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, बिकॉज वो भी आपके स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता है। एंड डोंट गिव अप इफ यू आर अ रिपीटर, एंड अगर फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो तुम्हें तो ज्यादा वो होना चाहिए कि यू हैव टू Yeah. डू इट राइट नाउ। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सीख करने का वो फ्लेक्स भी है, मैंने मिस कर दिया, बट यू गाइज हैव दैट मोमेंट कि यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्स कि ओके मैंने फर्स्ट में करा है, और लोग बोलते होंगे कि तू नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगी, बट यू हैव दैट चांस, सो डोंट मिस दैट। एंड लास्ट एक और चीज है, काफी लोगों को लगता है 3-4 महीने में हम नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, बट तुम 3 महीने में भी पास हो सकते हो इफ यू सेट योर माइंड टू इट। तो किसी की बातें मत सुनो, जस्ट जस्ट स्टार्ट, ठीक है, कुछ Yeah. सोचे बिना, जस्ट मेक योर स्ट्रैटेजी, सिट विद योर सेल्फ एंड स्टार्ट, दैट्स ऑल। Yeah. So thank you so much, Dr. Achal, for sharing your inspiring journey. And I am sure that so many aspirants will relate and learn from your experience. Thank you.